I have a money mindset. I am tuned into the flow of prosperity. I feel wealth flowing toward me now. Unexpected money simply falls into my lap. I have a money mindset. I am tuned into the flow of prosperity. Money comes to me easily and effortlessly. I receive money just by thinking luxuriously. I always think positively about money and wealth. A very good morning, all of you. Good morning, ma'am. Just be, Good morning. just be, let these words repeat in your mind for a few seconds. What you heard. If you heard them attentively, they would be ringing in your mind. If not all the affirmations, at least few affirmations. I am a money magnet. Money comes to me easily and effortlessly. Good. Very good. Chalo. A warm welcome to all of you to a new session. I'm sure everybody is doing wonderfully well. Everybody is gratefully grateful. Yeah? Okay. So, how many of us did yesterday's exercise? You see, whatever you call the pollution, the busy sedentary life, whatever we call it, the impact of this is majority of the people, they have some one or the other health issues. So these, as it is said, body has its own force, its own healing energy, right? The body heals itself. But then everything needs, everything needs focus. हम क्लास में 10 लोग बैठे हैं. अब हम 10 लोगों में से जब अपने को कोई देख के स्माइल करता है, how do you feel? You also smile, isn't it? So this is how it is. The connection, the focus would bring the connection. So our health also, which is taken for granted till everything is fine. So yesterday's practice, how many of us did it? I think Manisha said, yes, Manisha? Yes. Who else did this? और किसने करा? Or do we all believe, Sunita ji, very good. Or do we all believe in popping the medicines inside the body? Very good, Tripti. You see, dekhi, my dear friends, two things we have to remember. When we are writing the blessings, 10 blessings, we are doing it for ourselves. If मुझे मेरे लिए ही टाइम नहीं है, तो मैं किसी के लिए भी भला नहीं कर सकती हूँ. मैं यदि अपना भला नहीं चाहती हूँ, तो मैं किसी का भी भला नहीं चाहती हूँ. वो मैं फ्लो में कर रही हूँ, that is another thing. So if I am not writing, I don't have time, I'm very busy, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा को करने नहीं देते हैं. अब आप सोचिए हम कितने सारे काम दिन भर में कर लेते हैं. Everybody, male or a female, even if you're working or not working. How many things we do in a day?
करते ही हैं. So we have to get 10 minutes for ourselves at least. Secondly, what was the practice? Why was it in 3 parts? Can anybody tell me? She could have directly said, no, do this. Why is she asking us first, you imagine and remember 5 things, no, 3 separate things when you felt on top of the world. बड़ी खुश थे आप, बहुत खुश थे हम. एंड उसके बाद हमारे 5 बॉडी ऑर्गन्स जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको फोकस करके थैंक्स करा. एंड देन शी सेड नाउ गो ऑन. यस, वेरी गुड. सो नाउ गो ऑन टू द healing to what problem or the struggle or the challenge we have. Very good. Yes, Manisha. क्या होता है माइंड डियर? जैसे मैं उस दिन भी आपसे कह रही थी, Good आपने morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर. अभी Yes, ma'am. I do it. वेरी गुड. कीप इट अप माय डियर, कीप इट अप. नाउ माय डियर वंस, जैसे आपने आपने आज सोचा मुझे यज्ञ करना है और कोई पूजा करनी है या कोई कुछ भी तरीके का कुछ इस तरह की चीज करनी है, तो हम सारी चीजें क्या करते हैं? पहले तो हम वो सजाते हैं. फिर सपोज लंबी कोई पूजा है तो नवग्रह की स्थापना होगी, गणपति जी की होगी, लक्ष्मी जी की होगी, वॉट एवर. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. या यज्ञ भी होगा तो पहले सारी चीजें तैयार की जाएंगी, अरेंज की जाएंगी. फिर एक प्रोसीजर होता है जिससे हम स्टार्ट करते हैं. मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अपन ये करते हैं. जो कुछ और करते होंगे वो उसके लिए तैयारी करते होंगे फॉर श्योर. व्हाई डू वी डू दैट? Because we need some time to get into that mindset. So therefore, when she's asking us, you see, ये कौन सी वाली practice है? This was practice 16. So जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि फर्स्ट 10 practices में तो हम सीख रहे हैं. अब हम जो है हमारे पास और जो चाहिए हमें उसके लिए कर रहे हैं. We are doing for that. So these are the ways and means to do that. So I would suggest everybody, rather request everybody, please get 10 minutes, 15 minutes to do all these things and see the magic. See the magic flowing in your life. You will be amazed how different the life has become. Now, so first was you have to remember 3 things when you were top of the world. When you're top of the world, आपके आसपास कोई भी struggle वगैरह की चीज ध्यान नहीं आती उस वक्त. You are in that ultimate happiness, that high altitude, जहां आप maximum vibrate करते हैं. और मैंने आपसे ये भी सजेस्ट किया था कि जब आप बहुत खुश हो उस टाइम आप अपनी रिसीविंग खुली होती है. Ask. But we have to train ourselves for that. Right? Yeah. So first was to 3 occasions when I felt really top of the world. Then 5 organs which are working well and I'm sharing or I'm being grateful for those things. And then साथ में visualization है. आप एक और चीज देखेंगे. After that 10th practice, all the practices involved are, the element of visualization is there. So my dear ones, we really have to understand what is visualization. Visualization, as we will do it, we'll talk about it. So those who have not started yet still have got few more days to go. Still have got few more days. Otherwise, ये अभी जितने भी लोग स्क्रीन पर हैं, बहुतों ने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी. बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी अब तक आपने. So this will be another one book in your list that you have read. That's it. Nothing gained out of it. If I'm not doing it. If I'm doing it, फिर तो I'm getting richer day by day. Empowered day by day. Okay, I'll share the screen. Who would like to help me with reading, my dear friends? Anybody who would like to read with me today?
मैम मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। आप ये देखिए जो पिक्चर है, देखिए इनके सारे पिक्चर्स जो हैं, ये हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होगा उसको देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप पुराने पिक्चर्स देखेंगे तो आप बोलेंगे तो अंधेरा ही तो है, कुछ नहीं है, अभी यहाँ पर घर का सामान ही तो रखा है। बट यू सी, हम जिस प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, ये इस चेक की बात कर रहे हैं जो हमारी प्रैक्टिस आज है। मतलब क्या? जैसे आपने उस दिन जब अपन ने मैजिकल डे की बात करी थी, तो मैंने क्या बताया था आपको कि हमारे पास पावर है, हम हमारा दिन कैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। इन द सेम वे, हमारे पास पावर है, वी आर द क्रिएटर्स। हम क्रिएट कर सकते हैं जो पैसा, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। इससे, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, पैसा मतलब जिसके पास पैसा है उसके पास हैप्पीनेस है, जिसके पास नहीं, मैं यूं नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये पैसा बहुत सारी चीजें ऐसी लेके आता है अपनी लाइफ में जिससे हमें हैप्पीनेस फील करते हैं, हमें खुशी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पैसे थे और आपने प्लान किया फैमिली के साथ आउटिंग, चलो 4 दिन के लिए हम कहीं जा रहे हैं। तो अब वही फैमिली के साथ हम घर पे भी तो रहते हैं, बट अब हम उस फैमिली के साथ जब हम 4 दिन घूमने जा रहे हैं, so we have a very different relationship with each other. We have a very different feelings when we go and enjoy together. यही कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन जब हम बात करते हैं, जब एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन, राइट? और जो हम बात करते हैं आजकल जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप की, वो ये है कि जब हम एल्डर्स बच्चों के साथ मिंगल नहीं होते हैं, उनके साथ बात ही नहीं करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, हम स्ट्रेट अवे प्रॉब्लम्स पे जाते हैं जब कोई चैलेंज होता है तो। बट हमारी वो फ्रीक्वेंसी तो मैच ही नहीं होती कि हम 2 जने बैठ के डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। ये मैच करानी है सो दैट वी कैन हैव अ स्मूथ टॉक। वंडरफुल। ये मैं जनरली फैमिलीज में देखती हूँ, बच्चे जब हमारे पास आते हैं, क्योंकि आई टीच टीनेजर्स, तो ये जनरली बच्चे शिकायत करते हैं, पेरेंट्स समझते नहीं है मैडम हमको, वो सिर्फ डांटते हैं कि ऐसे मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। नॉट एवरीबडी, मेजॉरिटी। चले, तो आज की प्रैक्टिस है द मैजिकल चेक, द मैजिक चेक। ये मैजिक चेक से हम अट्रैक्ट करेंगे मनी। चलते हैं, बात करते हैं मनी की। मनी में, इन द मैजिकल यूनिवर्स, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. Means what? We all know this universe is very magical. It does things for us in a magical way we cannot think of. But remember one thing, dear friends, जो हायर एनर्जी है ऊपर, द वन विच इज गवर्निंग द होल यूनिवर्स, यू सी, वो जो भी है वो खुद से नीचे नहीं आती है वो एनर्जी। वो हम उसको भगवान भी कहते हैं, तो भगवान खुद से नीचे नहीं आ जाते हैं, वो किसी न किसी बंदे के थ्रू आपका काम करते हैं, राइट? सो इन दिस मैजिकल यूनिवर्स देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। अचानक से कुछ नहीं होता, वो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दिस यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय लॉज। अचानक से हो गया था, आज यूनिवर्स का मन हो गया कि सुषमा जी को यार बहुत सारे पैसे दे दो, और मीरा जी को उनका मन हो गया कि मीरा जी को ये दे दो। मीरा जी ने तो पूछा ही नहीं था, मांगा ही नहीं था, सुषमा जी को तो चाहिए ही नहीं था, उसको तो अचानक से मिल गया। आस्क ही नहीं थी, विलिंगनेस ही नहीं थी उस चीज की। सो नथिंग हैपेंस अनलेस समवन विल्स। मतलब कुछ यदि जब तक मैं नहीं चाहती हूँ वो नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव के लिए भी सही है, ये नेगेटिव के लिए भी सही है। तो देयरफॉर ग्रैटिट्यूड वुड कीप अस इन मोर पॉजिटिव माइंडसेट। तो हमारी जो विलिंगनेस है उस तरफ रहेगी, हम अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे, हम अपने आप को ट्रेन करेंगे, राइट? विलियम एस बरोज, 1914-1997, he was a writer and a poet. Okay, so आप जो भी करते हैं, हम
विलिंगनेस होती है तो ही करते हैं। आज आपका मन हुआ कि मुझे तो प्रैक्टिस करनी है, तो यानी क्या थी? मेरी विलिंगनेस थी, तभी मैंने करा। आज मेरी विलिंगनेस है, मैं एक्सरसाइज करना है मुझे। ये मेरी जब तक विलिंगनेस नहीं होगी, आई कैन नॉट एक्सरसाइज। दिस इज हाउ द लाइफ इज गवर्न्ड। सो विलिंगनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यस माय डियर। when you when you direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. यस, चॉइस हमारी होती हर बार। भगवान की मर्जी, भगवान में आज हम भी तो अपने बच्चों के लिए एक लेवल रखते हैं ना। हम तो क्या हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा गलत करे? हम सब पेरेंट्स हैं, जो भी यहाँ पर पेरेंट्स हैं, क्या हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा गलत करे? नहीं चाहते। बट बच्चे की विलिंगनेस है ना कि वो क्या कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ टेलिंग राइट एंड रॉन्ग, राइट फ्रॉम रॉन्ग, पर होता क्या है जो बच्चा चाहता है। तो इन द सेम वे हम और वो एनर्जी, वही हो गया, पेरेंट और बच्चे का रिलेशनशिप हो गया। सो व्हाट हैपेंस जब हम नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं, व्हेन वी हैव टू मेनी नेगेटिव एस्पेक्ट्स टुवर्ड्स मनी, और व्हेन वी आर नेवर ग्रेटफुल ऑफ व्हाट वी हैव। जैसे मैंने आपसे पहले दिन एक्सरसाइज कहा था करने को कि अपनी लाइफ में वो चीजें लिखिए जो हैं बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो चीज आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास घर है, घर है नहीं, घर कितना बड़ा कितना छोटा उसकी बात नहीं है, आपका अपना घर है। अब आप इमेजिन करिए उस इंसान को जिसके लिए घर एक सपना है, राइट? तो आपके पास है, तो क्या मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूं? तो ऐसे ही जिसने ये ग्रेटफुल वाली एक्सरसाइज करी होगी और उसमें आज तक ऐड ही हुआ होगा, माइनस नहीं हुआ होगा, तो जिसने ये एक्सरसाइज की होगी उसमें ऑटोमेटिकली ग्रेटिट्यूड आता जा रहा होगा। ओ माय गॉड! और आपको लगेगा यार मेरे घर में किस चीज की कमी है, मेरी लाइफ में किस चीज की कमी है? आई हैव abundance. So therefore, if I look at lack, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मतलब कबर्ड खोलो, कपड़े गिर रहे हैं और मैं कह रही हूँ मेरे पास कपड़े नहीं है। What is that? So therefore, my dear friends, gratitude would easily, if I'm grateful for the money I have, I am eliminating so many things. क्या? एक तो नेगेटिव कंडीशन को एलिमिनेट कर रही हूँ, लैक को रिमूव कर रही हूँ मेरी लाइफ में से, और पॉजिटिव माइंडसेट से अबंडेंस क्रिएट कर रही हूँ। Isn't it awesome? Yes, my dear. All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that the like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. Yeah. You see, my dear friends, we generally talk, ऐसे हम अनोइंगली बात करते हैं, अनकॉन्शियसली बात करते हैं। समटाइम्स यू आर वेरी वरिड, ये पैसा आएगा कहाँ से? इस महीने में मुझे बहुत सारा खर्चा करना है, बहुत सारा खर्चा करना है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे की फीस देनी है, कॉलेज की फीस देनी है, और वो कुछ थाउजेंड्स में है, या मुझे कुछ चीज खरीदनी है, कोई बड़ा बिल पे करना है, या बहुत सारे नए खर्चे आ गए थे जो प्लान नहीं थे, राइट?
So अब there are two ways I have to deal with the situation. मेरे पास for example नहीं है, I understand, but then I have two conditions, situations, two choices to make. One is I am worried to death कि यार how will I pay all the bills? Or you're worried कि oh my God, I don't have money. पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है. What am I doing? See, this is my thought I'm putting in the universe. So naturally, my thought would increase when my thought would attract more of the thoughts, जिस तरीके का thought मैंने डाला है. So now I'm worried. So what am I calling for? More worries. ये एक situation है. Another situation is same situation. Nothing is different. But then, what choice do I have? Anybody? What choice do I have? Anybody would like to say? What is my another choice? Did I think that I have abundant and at least I have this in my life so that Yes. it's not going smoothly. Yes. That means at least whatever is there in my life, whatever things I have around me, whatever money I have, I am grateful about that. कम से कम उस negative को तो पहले सरका दूं. And let me get into positive. Mindset तो change करूं अपना. Else तो मैं क्या attract कर रही हूं? Lack, scarcity. So what would happen? I'm getting more and more. तो उससे मेरी problem solve हो रही है क्या? नहीं. So then what should I do? Naturally, a prudent person should think about that. Secondly, the law of attraction आपको पता है कैसे काम करता है. उसके बाद, when I have so many things related to money means what? आपको मैंने पहले भी बात किया था. When I feel disappointed that I don't have money, or I feel envious, my neighbor, मेरे भाई के पास, मेरे देवर के पास, मेरी ननद के पास, मेरे cousin के पास इतना सारा पैसा है, रोज नई गाड़ी लेके आते हैं. I am not happy for them. So when I'm not happy for this, वही thought जा रहा है. Just imagine, just understand, my dear friends, this law of attraction, it is a law. Whether we want or we don't want, it starts working. So when I'm envious, what am I doing? I'm putting that thought. What would I get? More of those kind of thoughts. Will that make me happy? If I'm fearful, अरे इतना सारा पैसा खर्चा होगा, कैसे करूंगी मैं? Then I would receive situations where I have to pay more and more bills which I did not think it would turn up. And ये situation मैंने ही बुलाई है, किसी ने नहीं भेजी है मेरे पास. I am calling for it because I am the creator. तो इसीलिए the best option I have, be grateful about what I have, and then अभी तो हमने इतनी सारी चीजें सीख ली. How to manifest, how to visualize. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. आप इमेजिन करिए ये एक बोल है. अब इस बोल में बहुत सारे क्रिस्टल्स और ये सारी चीजें पड़ी हैं. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. अब आप इमेजिन करिए इस बोल में मैंने कुछ लिक्विड डाल के रखा है. ओके. अब इस बोल में जगह जगह छेद है. क्या होगा? सब निकल जाएगा. सब निकल जाएगा. इसमें आया था क्या? आया था इसके अंदर पानी, लिक्विड कुछ आया था? Yes. आया था, निकल गया. कैसे? जब मुझे भी नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं मनी से रिलेटेड, जब मैं उस मनी को गाली देती हूँ, जब मैं मनी को अच्छा नहीं बोलती हूँ, जब मनी को लेकर जलन होती है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, वरी होती है, उसके वो छेद है सारे. आपकी जेब में पैसा तो आ रहा है, वो टिक नहीं रहा. तो ये मेरे लिए एक वार्निंग कॉल है कि क्या मैं मनी से रिलेटेड नेगेटिव फीलिंग्स हैं क्या मेरे पास. देखिए पर्पसली हम नहीं कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली बोलने में. अरे यार हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, इसलिए पैसे के बारे में तो ज्यादा सोचते ही नहीं है और आता भी नहीं है, क्योंकि हम सीधे लोग हैं. तो जिनके पास पैसा आता है वो बहुत सीधे नहीं होते हैं, टेढ़े लोग होते हैं. तो आपने किसको गाली दी? पैसा उसके पास ही जाता है, टेढ़े के पास जाता है. यानी पैसा उसी को चूज करेगा जो खराब है. तो फिर पैसा क्या है? खराब है. उसको इसी तरह के ही लोग अच्छे लगते हैं.
Matlab, what I'm trying to say is we curse unconsciously. We fear, we are disappointed, we are worried. So this will bring situations where we are more fearful about money. These are negative beliefs about money. Yes, my dear. However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing, and gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money and above worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. एक बात बताइए dear friends, आप imagine कीजिए, for example, any close relative of yours. Imagine any close relative of yours. अब आप आज आपने उसकी तारीफ करी, कल आपको वो अच्छा नहीं लगा, उसकी बुराई हो गई. I mean बुराई in the sense की गलत, judgmental, whatever. फिर कल परसों मैंने उनकी वापस तारीफ करी, पर उसके बाद वैसा ही. तो आप मुझे बताओ ये यो वाला रिलेशनशिप होगा कि नहीं? मतलब वो रिलेशनशिप स्टेबल होगा क्या? आज आपने मेरी अच्छी बात देखी, कल फिर बुराई करी, फिर अच्छी बात करी, फिर बुराई करी. तो क्या आपके मन में मेरे लिए, मेरे अंदर कोई पॉजिटिव चीज दिख रही है क्या? दिख रही हो रही होती तो आपको नेगेटिव भी तो उतनी दिख रही है. तो मैंने तो उसको क्या कर दिया? I am not feeling negative. I am not feeling positive anything. No appreciation. मुझे तो वही एक बार हाँ करा, फिर ब्लेम कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर ब्लेम कर दिया. Will I have a good relationship with the money, with a person? No. So in the same way, when I am thinking money is good and then say money ऐसा हो रहा है, money ऐसा हो रहा है, money ऐसा हो रहा है, तो मैं ये यो वाला चल रही हूँ, तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे. I would not be in that state of gratitude. So no matter how the situation is, we have to stop that. And we have to be grateful for whatever money we have, whatever we are able to do. Because now we understand that जहां पर appreciation है, वहां पर complain नहीं हो सकता. जहां पर complain है, वहां पर respect नहीं हो सकता. बिल्कुल भी नहीं हो सकता. So when you are grateful for money, हम क्या करा रहे हैं? Not only that negative thought को push कर रहे हैं, we are attracting money. What would you like to do? We'll ask ourselves, what do I want to do? Choice तो मेरे पास ही है. मुझे क्या करना है? हाँ जी. You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So, before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money for riches could come into your life. Because if you are not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. Yes. आप मुझे प्यार देंगे तो आज मुझे आपसे प्यार मिला, तो कल मैं थोड़ा सा फ्री थी तो मैं कहाँ जाऊंगी? जिसने मुझे प्यार दिया, अरे चलो यार थोड़ा टाइम है, मैं उसके पास होके आती हूँ. कहीं मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं उसको ही बोल के जाऊंगी जो मुझे प्यार दे रहा है. कल को मुझे मेरे घर में कुछ फंक्शन है तो हम कैसे बुलाते हैं? हाउ डू वी डिसाइड आवर गेस्ट लिस्ट? डू वी कॉल द होल वर्ल्ड? Some are the relatives, that is fine. You don't choose your relatives, but you choose your people who love you, right? Whether they are relatives or friends, that is not the question. The question is they love you, they respect you, they understand you. So now, when you will practice gratitude, what am I doing? Every time I go to that money, so the money and I will have very good relationship.
आई एम ऑलवेज प्रेजिंग, आई एम ऑलवेज थैंकफुल. मेरे बच्चों को मेरे ऑफिस में बहुत काम था, मैं मेरे बच्चों को नहीं देख पा रही थी शाम को. फिर मैंने मेरी फ्रेंड से कहा ना, मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत मदद करी, मेरे बच्चों को अपने घर पे रखा, खाना भी खिलाया, रात को सेटल कर दिया, सुबह को उसने भेजा. व्हाट वुड बी माय फीलिंग माय डियर फ्रेंड्स? हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं ना, उसने भी तो करा, मैं भी करती हूँ. एक तो ये फीलिंग है. एक फीलिंग है अथाह ग्रेटिट्यूड आया. वो मना भी तो कर सकती थी ना भी कर सकती थी कि मुझे काम है, बट उसके लिए भी इट वॉज नॉट कन्वीनियंट, बट शी वेंट आउट ऑफ हर वे टू डू दिस. सो इन द सेम वे वी ऑल हैव प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड. हमने मनी से रिलेटेड ऑलरेडी कर दिया है, but we have to understand there is not only one fixed way through which the money would come. हमने सब देख लिया था, सारे डिस्काउंट्स आते हैं, हमको सस्ती चीज मिलती है, that also is money received. हमें कोई गिफ्ट मिलती है, हम उसको खरीद के आने वाले थे, बट हमको मिल गई तो वो भी पैसा बच गया. क्या मैंने उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया? मेरा पैसा बच गया. कुछ टाइम के लिए मुझे कुछ चीज चाहिए थी, तो किस मेरी फ्रेंड ने कहा मेरी यूज कर लो, क्यों पैसे खराब कर रहे हो? आई मीन व्हाई आर यू यूजिंग द मनी? सो मेरा काम हो गया. तो am I grateful for that money which I saved? But हमें क्या दिखता है? Cash, hard cash, right? So if we are not grateful each time, we stop there. Understand this. Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner when you are about to purchase an item and you discover it has been discounted. When there is a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy, the end result of every one of these circumstances is that you have more money. So, whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance means that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance. Yes, these are different ways which we have to give a thought. Thought, matlab consciously we have to be very grateful that we, under all these circumstances, we have saved our money. The money has come to us. So when the money has come to us, am I grateful to that money? Am I being thankful to that money? So this is how I have to realize and be very grateful for the money that I have received. Yes, my dear. If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lower their interest rate, or a service provider offers you a far better package, your money magically increase through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? Yes, today you just sit down and think पिछले एक हफ्ते में ऐसे कितनी चीजें हुई होंगी. पहले तो वो याद आनी चाहिए. Because हमें याद क्यों नहीं आती हैं? Because we take it for granted, or rather we don't think it that way. कि यार डिस्काउंट है ना, ठीक है, तो हमें ये नहीं समझ में आया कि डिस्काउंट है तो मेरा भी तो पैसा बचा है. मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, सेव माय मनी, राइट? इट जस्ट फ्लो के साथ बह जाते, ध्यान नहीं देते हैं. सो नाउ वी विल कॉन्शियसली सिट डाउन एंड थिंक अबाउट how, when, and then be grateful for that. Most likely, you have experienced some of these situations in the past, and whether you realized it or not at the time, they occurred because you attracted them.
But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck it at all. It's universal law. मतलब अब आपको समझ में आ गया कि जब हम, वरना अपन जब ये चीजें नहीं पढ़ते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि जब कोई हमसे कहते हैं कि हम ही तो क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के, तो पहला क्वेश्चन आता है, यदि मैंने क्रिएट करी तो मैं गलत चीजें क्यों क्रिएट कर रही हूँ? तो ये गलत चीजें जब हम थॉट, ऐसा लोअर थॉट, लोअर वाइब्रेशन में जाते हैं, उसका रेपकर्शन क्या होता है फ्यूचर में? दैट समथिंग सिचुएशन और सम सिचुएशन which is ugly, we don't like it. So we have created, right? So now when I'm creating, मतलब मेरे हाथ में तो ये पावर है कि मैं गुड थिंग क्रिएट कर रही हूँ, तो मेरे हाथ में ये भी पावर है कि मैं जो अनप्लेजेंट है वो भी क्रिएट करूँ. So these situations where you read, I mean whether we have realized it or not, you have attracted, right? Yeah, कोई भी अचानक से नहीं हुआ. Always remember one line, इस यूनिवर्स में अचानक से नहीं होता है. आपने कभी भी नहीं देखा है कि एक बिल्ली ने एक डॉगी के बच्चे को जन्म दिया हो. एक रोज, आई मीन किसी एक पर्टिकुलर फूल पे दूसरा फूल कभी नहीं आया. कभी ऐसा मिक्सड अप नहीं हुआ. बिकॉज इट इज वर्क, इट इज गवर्न बाय लॉज. तो यदि मेरे पास अच्छा आया है तो मैंने उसके लिए जरूर कुछ अच्छा करा. मेरे पास अच्छा नहीं आया है, उसकी जिम्मेदार भी मैं हूं. नॉट द लक. मतलब ऐसा, मुझे एक बात बताइए, ऐसा कोई सिस्टम है कि एक इंसान पूरा ही लकी हो गया और एक इंसान पूरा ही अनलकी हो गया? हम भी पेरेंट्स हैं, हमारे दो बच्चे हैं, हम एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और दूसरे बच्चे के लिए रत्ती भर भी नहीं कर रहे. हम कर सकते हैं एज अ पेरेंट? आस्क योरसेल्फ. No, ma'am. दैट कम्स द आंसर. मैम एक क्वेश्चन है. हाँ जी. मैम एक बच्चा पैदा होता है एंड उसमें कोई भी एलिमेंट्स है, कोई भी डिजीज होती है, और मान लीजिए कि एक बच्चा पैदा हुआ हार्डली फ्यू मंथ्स, और ही और शी कम्स टू नो कि उस बच्चे को कोई बड़ी बीमारी है. तो इस पे मैम थोड़ा सा कोई. अब आपने बहुत सारे पेरेंट्स देखे होंगे जिनके बच्चों को प्रॉब्लम होती है, नहीं मनीषा? बहुत सारे पेरेंट्स देखे होंगे अपन ने. जी मैम, ये न्यू बर्थ एक, की बात कर रही हूँ. न्यू बर्थ जो अभी तक कुछ संसार में देखा ही मैं नहीं है वही किसी न्यू ने. बर्थ की बात आ रही. आपने ऐसे पेरेंट्स बहुत देखे हैं जिनके न्यू बॉर्न बेबी ऐसा आया हो? यस मैम, मैंने देखा है, पर्सनली व्यू किया है. या अभी यस मैम. अभी अभी हम जब बोलते हैं, क्या आप बिलीव करते हो कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अभिमन्यु को जो पता चला था, वो उसकी माँ ने, जब वो ही वाज इन हर वूम, उसको पता चला था वो चीज. डू यू बिलीव इन दिस मनीषा? यस मैम, एट टाइम्स. बिलीव. वी ऑल बिलीव, राइट? सो वॉट एवर इज हैपनिंग, ये एक चीज का कल्मिनेशन नहीं है. देर आर सो मेनी थिंग्स associated with that. For example, एक बच्चा है, for example, a lady comes to know she is expecting, she doesn't want the child, she goes to the doctor कि डॉक्टर मुझे तो अबॉर्शन कराना है, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए. But somehow the बच्चा उसके पास रह जाता है and she is not able to abort. Now with what vibrations did the first thing came to the mind of mother, and what vibrations went to that child in the womb? You cannot say उसको कुछ खबर नहीं पड़ी. वो भी एनर्जी था, वो स्टार्ट हुआ है भले कितना भी छोटा है, एनर्जेटिकली वो भी समझ रहा है. उसके उसके पास कहाँ क्या गया, उसके बाद क्या हुआ, और कुछ उसके अपने संस्कार. राइट? अब आप यहाँ पर आइए. कुछ पेरेंट्स के वो बच्चे होते हैं, आपको दो सेट ऑफ पेरेंट्स मिलेंगे. एक पेरेंट तो जो हमेशा दुखी होते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा है. कुछ पेरेंट तो हमेशा वुड गो, इट इज नॉट इजी फॉर ईदर ऑफ देम. किसी भी पेरेंट के लिए सही इजी नहीं है, बट both the parents will have a different feeling. Have you ever seen that, Manisha? यस मैम. क्यों फर्क होता है उसमें? What is the difference? Okay, यूं बता दो, what is the difference?
My dear, ये सारी चीजें, हाँ जी पूर्णिमा जी, yes please. That's a very good concept that you brought in. Actually, I also, I'm also in one of those. Okay. But yes, mistakenly, knowingly or unknowingly, we did a mistake. So, how to come out of that? Those things which we unwantedly give the vibration. This is what we are doing right now. So now whatever is there, we will be grateful about it. There are people on this earth, they are yearning for a child. कैसा मेरे पास बच्चा चाहिए, but they don't have it. Okay. Secondly, we all believe that if a problem is given, एक बात बताइए, आज मेरे 2 बच्चे हैं, अब एक बच्चा मेरा तो बहुत नॉर्मल है और सपोज मेरे दूसरे बच्चे को किसी तरीके की भी कोई स्ट्रगल है, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल चैलेंज, कोई भी तरह की स्ट्रगल है, तो नाउ मेरी सारी एनर्जी कहाँ जाएगी, मेरा ज्यादा फोकस कहाँ जाएगा एज अ पेरेंट ऑल्सो, Whoever the one who struggling. is, Yeah. yes, the one who is struggling, right? So now what we can do, we can be very grateful for the child, whatever the child is able to do, whatever the child has. And then as we go further with this in this gratitude journey, we will see that there would be so many changes because we can change the things. We are talking about that we are the creators. Now, whatever is there, now I want it a better option, or I want the life to be better. I want his life to be smoother. The only way out is gratitude. Wow. If you believe me, the only way out is gratitude. This is what I believe. As I've already told you, I do a few modalities of healing, but then my journey, after this gratitude journey, I don't feel like going anywhere else. Right? Yes, Meeraji, you want to say something? Meeraji? Okay. चलिए आगे पढ़ते हैं. नीचे ही था, any circumstances से ही था. Okay. Any circumstance that result in you having more money or receiving something that cost money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. Yes. Like just now, Manisha brought up a case of a child. Like when my child does something very simple, very small, huh? If my child has done something, do I appreciate and I'm happy, but am I grateful also? You know, there are children who were not able to do that, but my child was able to do it. So now when I am in gratitude, what would happen? I would be attracting more and more for my kids. In the same way, when I know that when I'm grateful for the money, what am I doing? That is the magnet. Therefore, आपने affirmation सुना ना? I am a money magnet. So what would I do? I would be attracting more and more abundance if I am grateful under all circumstances. If I am receiving, देखिए भाई, एक चीज और बता दूं, आपने किसी को उसके बर्थडे पे कुछ गिफ्ट दिया, आपने अपनी मर्जी से दिया, उसने मांगा नहीं था, और आपके अब अब दूसरी सिचुएशन है, आपने किसी को बर्थडे की गिफ्ट दी और आप बहुत ग्रेटफुल हो कि आपके पास पैसे हैं, और आप बहुत ग्रेटफुल हो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आप किसी के लिए कुछ लेके आए. अब उस बंदे ने आपको भी कुछ गिफ्ट दी, आपके यहाँ पर कुछ ओकेजन हुआ, अब आपके पास फिर 2 चॉइसेस है. आप या तो बहुत ग्रेटफुल हो, थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग अबाउट मी, उसके पास ये चॉइस ही, वो कुछ ना देता, आप बोल के चुप होके बैठ जाते, क्या कर लेते, उसका खून नहीं करते. सेकेंडली, मैं ये सोचूं कि यार मैंने तो दी थी, उसने दी, तो कौन सी बड़ी बात है, चॉइसेस दोनों मेरे पास थी, मैं क्या चूज करती हूँ. So when I am choosing all the choices which are landing me in the gratitude, how would my life not be different?
मेरे पास सब तरफ से चाहूं ओर से abundance आएगी ही आएगी. Nobody can stop it. Yes. When I arrived in the United States several years ago, I arrived with two suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't I did not have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its four plates, four knives, four forks, and four spoons. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to gift to me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly I had my own personal driver and car. I was grateful, so I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. अब देखिए एक सिचुएशन में इन्होंने कितने सारे ग्रेटिट्यूड निकाल दिए, जिसमें Awesome. जबकि उस अपार्टमेंट में बेयरबोन यानी कुछ भी नहीं था. उसको कंप्यूटर भी अपनी गोदी में रखना पड़ता था, मतलब वो टेबल का टुकड़ा भी नहीं था. She could have grumbled, she could have cribbed about it, right? She had only two suitcases. एक तो उसने कितनी सारी चीजों की ग्रेटिट्यूड कर ली. अब जब when she started being grateful, देखिए उसकी लाइफ अपने आप कैसे स्मूथ होती चली जा रही है. This is how we call for more and more. ये abundance नहीं है साहब, उसको पैदल चलना पड़ता था, अब उसके पास कार है, chauffeur driven car. Isn't it not abundance? Yes. So if this is how we have to look into our lives and see, be very, very, very grateful for what we have. Yes, my dear. Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe. And you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you are going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money per se, you would not be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. Today's magical practice, very simple and beautiful. But before I start telling you about it, one thing I would request all of you, first of all, have faith and belief that you will be able to attract money. When we doubt ourselves, मेरे पास तो कभी होता ही नहीं था, अभी भी नहीं आएगा. अब मैं कर भी रही हूँ, दिख भी रही हूँ, but मेरा दिमाग में मेरे thoughts, you see, your universe understands your thoughts. मैं कर कुछ और रही हूँ, दिमाग में कुछ और जा रहा है. जो मेरे दिमाग में है वो जा रहा है यूनिवर्स में, और वो ही अट्रैक्ट कर रही हूँ मैं. So today's magical practice about the money is beautiful one. People have got it, but then one thing I have to remember is I need to have belief, I need to have faith that this will happen. And then आपने एक बार, अब क्या करना है आपको? You will, there's a
there's a हम लोग print डाल देंगे, the image डाल देंगे, हरीश sir, we have to get this copy of this check. और इसमें क्या, ये चेक किसका लिखा हुआ है? ये चेक है बैंक ऑफ यूनिवर्स का, किसी इंडियन बैंक का नहीं है, इंटरनेशनल बैंक का नहीं है, ये बैंक ऑफ यूनिवर्स है, जहां से आपके पास अबंडेंस आ रहा है। अब उसमें आपको एक डिजायर्ड अमाउंट लिखना है। कौन सा अमाउंट लिखना है? आप लिखोगे मुझे पैसा चाहिए, तो ऐसा काम नहीं होता है। बैंक में रखने के लिए कभी भी हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते। हमें अट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे बच्चे की फीस भरनी है, मुझे मेरे बच्चे के लिए ये खरीदना है, मुझे मेरे लिए ये करना है, और मुझे लंदन ट्रिप पे जाना है, और मुझे कुछ और करना है। मतलब आई शुड हैव अ रीजन फॉर आस्किंग दैट मनी। ये इमेजिन करिए साहब, आपका बच्चा आया, आपके 2 बच्चे, एक बच्चे ने आपके पास आया और उसने कहा कि मम्मी मुझे 100 रुपया दीजिए। आप पूछोगे 100 रुपया क्या करेगा? तो आपने, वो बोलेगा कि मम्मी मुझे एक स्टेशनरी खरीदना है, कॉपी खरीदना है, एक पेन खरीदना है, इस तरह की चीजें खरीदनी है। आपने उसको निकाल के दे दिया 100 रुपया। आपका दूसरा बच्चा आया, मम्मी उसको 100 रुपया दिया, मुझे भी 100 रुपया दे दीजिए। आप 100 रुपया दोगे? आस्क योरसेल्फ, आप कितनी बार दोगे? आस्क योरसेल्फ, किसी को जवाब नहीं देना है। इन द सेम वे, हम जब यूनिवर्स के पास जा रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं मुझे इसके लिए पैसा चाहिए, यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, right? So I have to choose a specific amount. For example, I have to plan a trip to Europe, I have to plan a trip to America, or I have to plan a trip to Sikkim. जहां भी जाना है मुझे, कहीं बाजू में भी जाना है, और उस बच्चे को लेके आ, थोड़ा बढ़िया लेके आ। हिरानी से आपका म्यूट कर दीजिए, हिरानी से। सॉरी मैं खाली बोले जा रहा था कि चेक भेज रहा हूँ, हाँ, और चेक बोला वो भेजने के लिए म्यूट किया था। सॉरी कोई बात नहीं है। So what are we doing? We are writing that a particular amount, whatever we want, for whatever we want. That amount is written. उसमें कुछ नहीं भरना है, आपको अपना नाम भरना है, बिकॉज ये मनी किसके पास जाना है? ये मनी पूर्णिमा के पास जाना है, ये मनी मीरा के पास जाना है, ये मनी सुषमा के पास जाना है, ये मनी हिरानी सर के पास जाना है। तो वो अपना नाम लिखेंगे, राइट? तो नाउ यू हैव रिटन योर नेम ऑन इट, टुडेज डेट, एंड द अमाउंट विच यू वांट। दैट्स इट। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। So if you have any doubt, can ask me right now. Don't get confused कि क्या लिखूं इसमें, कुछ नहीं लिखना है। Today's date, your name and the amount, जो आपका इंटेंशन क्या है उस अमाउंट का। हाँ जी सुनीता जी। Yes my dear. I have a question Sure. regarding if there are different areas for which you want, if you recollect, I asked a question regarding money that is stuck with the builder. So, do I write different checks for that, or do I accumulate the amount and write a single check? I'll give you one example. You have a maid servant. So your maid servant, she said, I'm not coming, मैं छुट्टी पर हूँ. And then आपने उसको बोला एक आधे घंटे के लिए आजा, मेहमान आए हैं. तो वो आधे घंटे के लिए आ गई. Another few times ऐसा it happened that she was on leave, but somehow you called, or sometimes there was extra work and you asked her to stay back, and she stayed back. Now, every time you did and she reciprocated, so now what are your feelings towards her? One feeling which you feel that, okay, towards that Gratitude and relief that I was able to manage. Gratitude, relief, anything else? Anything else? And for next time, what is there in your mind? That she's always there to support me. Exactly. So that faith is there. Right? Now, when you're writing checks, first I would suggest do with one thing and see, because unless and until I don't have faith, I don't have belief, it doesn't work. Okay. So how would I have faith? I will have faith. I start with an amount which is comfortable to me. See, everybody is comfortable with a very different amount, right? So whatever amount you're comfortable with and the intention, why do you want that money? Just do with that. Once you get that, Sunita ji, once you get that, you can always contact us. We will help you to get that as well. Okay. Yeah. So now do this check practice with any money you want in your life or whatever you want, right? So 3 things. Yes, Sunita ji.
मैम वो उस दिन आपने बोला था ना, तब किया था वो, और वो अमावस मूनलाइट में रखा था। फिर अब उसको बाद में कहाँ रखना है? मैंने आपके चेक, आपके ड्रॉअर में सेफ रख बॉक्स, दिया है। नहीं ड्रॉअर में नहीं रखी, जहां अपना पैसा रखते हैं, सामान रखते हैं, आप उसको रोज देख के विजुअलाइज करिए, दिस इज हम्म, हैपनिंग, ओके। मैम राइट। मैंने वॉल में चिपका दिया है, बहुत ही अच्छा है। आप देखिए, आपके घर में एक मेहमान आया है, मैं डेली आप देखती उससे, हूँ उसको। आप उसके पास बार बार जाते हैं, कुछ चाहिए, रादर आप करते भी हैं, अभी उसके लिए स्पेशल कुछ बना दिया है। अब वो मेहमान आपके घर में इज फीलिंग वेलकम, और एक मेहमान है वो बेचारा कमरे में बैठा है, पूछा नहीं करा नहीं, जब खाना बना एक बार आ गया बेचारा, वापस सारा दिन कमरे में बैठा है। हाउ इज द, विच मेहमान वुड एंजॉय एट योर प्लेस? जिनको हम बार बार पूछेंगे वो। सो उसको रोज देखिए, विजुअलाइज करिए, टाइम्स कहिए। ओके ओके। ओके, यस माय डियर। मुझे You तो can बड़ी खुशी मिलती है। मैंने 2 तरह हाँ के लिखे हुए हैं, मुझे लग रहा है ये तो आ ही गया है, जब हाँ, सही टाइम आएगा तो अकाउंट चेक कर लेंगे। आप ये मत बोलिए सब सही टाइम आएगा, आ गया है मेरे पास, यू बी हैप्पी दैट इट इज कमिंग, इट इज देयर, एंड इट देन इज सी। देयर। क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड सिर्फ उन चीजों के लिए नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स जो हो गई हैं, हम थैंक्स और ग्रेटिट्यूड पहले ही बोल देते हैं जो चीज हम चाहते हैं, एंड दिस इज द वे टू अट्रैक्ट दैट इन योर लाइफ। सो आई एम ऑलरेडी, आपने वो मनी वाली प्रैक्टिस की थी ना, बिल्स वाली, तो एक बार yes. जहां आपने कैश पे किया था, आपने क्या किया, पेड कैश, थैंक यू। जो दूसरे में जब आपके पास पैसे नहीं थे, बट आपने तो भी उसके ऊपर क्या लिखा था उस बिल के लिए, थैंक यू फॉर द मनी, मतलब वो पैसा आ गया है और मैंने ये दे दिया है। सो इन द सेम वे वी कैन ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड ऑफ वट एवर वी आर आस्किंग। करके देखिए ना साहब, मैम एक इफ्स एंड बट्स में नहीं, डाउट में नहीं, जहां मैं डाउट में गई वो नहीं होता है। हाँ जी, कैन आई जस्ट शेयर समथिंग? श्योर। शायद इसको आप लोग हंसेंगे या जो भी नहीं है। हंसेंगे, बिल्कुल नहीं हंसेंगे। मैं हंसूंगी, मुझे हंसना अच्छा लगता है। हमको भी बहुत अच्छा लगता है मैम, और हम उसकी उस मैं देखिए, एक तो वो शेयरिंग कर रही है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं हंसूंगी। आपको लगता है कि मैं Yeah, आपको I want शेयरिंग कर, you all to laugh in a very happy, pleasant way, ओके like विल डू that दैट way. देन, It's विल a डू दैट lighting, देन, mood ओके lighting thing. ओके ओके ओके, विल डू तो दैट। मैम ना, जैसे मैं उस दिन भी मैंने बोला था, सर ने पूछा ऐसा क्यों तुमने बोला कि मिडिल क्लास फैमिली हो जो भी है, वी आर नॉर्मल पीपल, व्हाट टू यस से, यस बट यस, एजुकेशन भी बहुत सही है, सब अच्छे हैं, मतलब पापा वेरी गुड। मैं बचपन से ना, ऐसा नहीं है कि वी एम करोड़पति मिलियनर व्हाटएवर, बट बचपन से ना मैं, मुझे सब कुछ मिला है, आई एम इन अबंडेंस। तो ये भी होता है, दिस इज नेगेटिव थिंग्स आई विल से, कि एंजाइटी होती है, फियर, वो सब भी है, स्ट्रेस अलग बात है, बट एक चीज जो है ना मेरे पास, आई एम ऑलवेज इन अबंडेंस। तो मैं जैसे अपने पति को बोलती हूँ, ही इज द क्लोजेस्ट टू मी नाउ, कि बाबा तू फिक्र मत कर, मनी ना ऑलवेज इन अबंडेंस विथ मी। वो बोलता है कि वो भी टेंशन नहीं लेता है ऐसे किसी बात का, लेकिन मैं बोलती हूँ तुझे कुछ चाहिए ना, बिंदास मुझसे मांग ले, भले हाँ मेरे हाँ सी, अकाउंट में हो ना हो, मेरे पास, मतलब ऊपर वाले की इतना करम है मेरे ऊपर, मनी तो कभी कम नहीं होगा। मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ मैम, एंड यू विल नॉट बिलीव कि मेरे वॉलेट में कभी कम नहीं होता पैसा। मतलब आई वॉन्ट अदर कंटेस्टेंट्स टू नो दैट आई एम अ वेरी नॉर्मल पर्सन, बट मेरे वॉलेट में 10-20 हजार आराम से निकल आते हैं। छोटा सा वॉलेट है, कोई हाई फाई नहीं है। मतलब इफ यू लुक एट द वॉलेट, व्हाट यू विल सी इसमें क्या होगा। बट लेट मी टेल ऑल माय फेलो कंटेस्ट, जो यहाँ पे हैं फ्रेंड्स, कि अगर आप ऐसे बिलीव करो, मतलब एक चीज में, अरे यू जस्ट ओपन द वॉलेट, और उनको बोलते अरे मुझे उसको पैसे देने, मैं घर से नहीं लेके आया, जस्ट ओपन द वॉलेट, 5,000 ऐसे मिल जाएंगे चुटकी बजा के। एंड आई स्वेयर बाय गॉड, ये होता है मेरे साथ, कभी 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 प्रॉब्लम नहीं आए। अभी मुझे किसी को 25 देने हैं, कभी 10 देने हैं, 10,000 दिस, मैं बोलती हूँ, नहीं बोलती ऐसे, क्या है कैसे, अरे आ जाएंगे, अभी अकाउंट में, अरे 10 ही में, 10 मिनिमम रखने हैं, 10 ही है मेरे पास।
ऐसा भी स्ट्रेसफुली नहीं बोलती हूँ मैं। अरे रुक राजीव, मतलब मेरे हस्बैंड, 2 दिन रुक तो देख, उसका देख 25 कैसे, अरे वो हो जाता है, आई स्वेयर। एंड आई बीन लाइक दैट। मतलब पापा ने बचपन से मैंने जो भी जिस पर उंगली मतलब बोला है ना, वो मुझे मिला है। बट आई हैव, मैं ऐसे ग्रेटिट्यूड में, थॉट में रहती हूँ कि यस, मेरा भगवान है, माय फादर, मतलब गॉड ऑल्सो एंड माय डैड ऑल्सो, आई हैव एवरीथिंग इन अबंडेंस। अभी वो रिटायर्ड, वो अपनी पेंशन उनकी मिलती है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ चाहिए वो दे देंगे। मतलब वो, मैं ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ। मैं उनसे ज्यादा भी कमाती हूँ, लेकिन फिर भी आई एम लाइक अरे नहीं है ना, कोई बात नहीं, कल देख, 2 दिन देख लेना, पेशेंट्स इतने आएंगे, इतना है, हम आराम से विल हैव 10 टाइम। एंड ऐसा होता है। तो अगर मैं, I can think that way. I am just telling others. It happens. I am every day living with this money feeling. Of course, मेरे पास करोड़ नहीं है कि आपने मांग लिया और मैंने ऐसे दे दिया। लेक्स भी नहीं है, लेकिन the way जितना मैं spend करती हूँ, Yes. आता है। I'm So very grateful for that. see, that is what we are saying. We are talking about that thought. Initially, जो रोंडा ने चैप्टर, जिस प्रैक्टिस को स्टार्ट किया, उसमें ये थॉट की ही बात है. You keep worrying, the worries would keep coming to you. You think of abundance, the abundance would come to you. What are you thinking? What thought is going into this universe? आपका उस मनी के साथ कैसा रिलेशनशिप है? वही वाली बात है, मेहमान वाली बात है, प्यार वाली बात है, वो सारी बात अब जो जिस तरीके से आप समझना चाहें, राइट? ओके. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी. हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग. हाँ जी मैम, मैंने भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। हाँ जी. मेरे पास ना पहले, जैसे मैं डेली यूज वाले पर्स में, जैसे मान लो मैंने 500 रुपए रखे हैं, तो शाम तक मेरा पूरा पर्स खाली हो जाता था। 1000 रखे हैं तब भी शाम तक खाली, 200 रखे हैं तब भी शाम तक खाली। अब जब से मैं ग्रेटिट्यूड से जुड़ी हूँ ना, तब से मतलब मेरे को नहीं पता कि मेरा पर्स किसी दिन खाली हुआ हो, क्योंकि मैं हर टाइम वाह. थैंक यू करती रहती हूँ। कुछ भी खर्च करती हूँ तब भी थैंक यू करती हूँ, हाँ. तो कुछ आता है तब भी थैंक यू करती हूँ। तो मेरे पर्स में हर टाइम पैसे रहते ही हैं, तो मतलब ये मैंने ब्यूटीफुल एग्जाम्पल नोट सुनीता किया जी. है। हाँ जी। बिल्कुल ब्यूटीफुल एग्जाम्पल कि आपने दोनों सिचुएशंस को देख लिया. हाँ जी। सो अगेन, अब आप अपनी विलिंगनेस से क्या करती हैं? आप थैंक यू करती हैं. तो मुझे हर चीज करवाने के लिए क्या चाहिए? मेरी विलिंगनेस. हाँ जी, पीरियड. एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा हुआ है इससे। आपका वंडरफुल. थैंक यू बहुत बहुत। ग्रेट ग्रेट ग्रेट. मैम थैंक यू सो मैम, मच हम फॉर लोग शेयरिंग. जो चीज भी खर्च करते थे ना, कभी थैंक यू नहीं बोलते थे। आजकल तो ये हो गया है कि मैं कुछ भी खरीदती हूँ, पहले मनी को थैंक यू, आप मेरे पास थे इसलिए मैंने ये मैंने चीज अपने खरीदी, खरीदी. थैंक यू सो मच। वंडरफुल. ये, और कल जैसे मैम हम लोग जैसे हेल्थ का कल कर रहे थे. हाँ क्लास, तो कल मैंने, जैसे हम लोग थोड़ा मैरिज के लिए शॉपिंग शुरू कर रहे थे, तो कल हम वहाँ चांदनी चौक गए मैम, एक रिक्शे वाला था, रिक्शे वाले का एक बाजू भी मतलब हाफ था, हाफ कटा हुआ था उसका, फिर भी वो रिक्शा लेके चलो. सबको बिठा के वो सब कर रहा है। और क्या, मैं बोली कि कैसे चलाएगा, लेकिन फिर भी हम उसके रिक्शे रिक्शे पे बैठे पार्किंग तक जाने के लिए। मैम उसने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और सब किया। हमने उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए, क्योंकि हम देखते हैं आजकल यंगस्टर्स वगैरह सारे कितना भीख मांगने में देर नहीं लगा, हाँ, देर नहीं लेकिन वो लगाते. मेहनत कर रहा है। उसको देख हाँ. के मैंने फिर ग्रेटफुल हुई और थैंक यू बोला कि एटलीस्ट मैं तो पूरे बॉडी पार्ट्स के साथ पैदा हुई हूँ और अच्छे से काम कर रहे हैं मेरे, उसके लिए भी वंडरफुल. थैंक यू। थैंक यू. मैम वाह. बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोग ने एक पानी पूरी वाले को पैसे दिए, वो मैंने स्विच नंबर बताया था ना मनी के हाँ. लिए, 708 अनंतम हम्म. लौट गया। मैंने उसको वो उसको भी बताया पानी पूरी वाले को कि आप ऐसे हाँ. करो, आपके पास और बरकत होएगी। वो हाँ. मैम इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, और उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। वाह. वंडरफुल. बहुत बहुत अच्छा बढ़िया. लगा। बहुत ही अच्छा. बहुत ही अच्छा. ग्रेट. हाँ साहब, आगे पढ़ते हैं. इफ यू हेलो। वांट। हाँ जी, मंजीत सर. हाँ जी मैम, मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। हाँ एक्चुअली जी. मैम ये एक्सपीरियंस पता है कब का है? ये जब लास्ट टाइम आपने ये हाँ, यूनिवर्स का चेक जो है वो भेजा था करवाया ना, था. और मैंने हाँ. मैंने एक्चुअली क्या
मैंने बताया था आपको कि लास्ट टाइम मतलब जब आपने बोला था तो मैं ना मतलब सोचता सोचता ही रह गया। और मतलब एक्चुअल क्या है, मेरे दिमाग में ये था कि जैसे ना वो पेपर पे अपना जो नोट होता है उस पर नहीं लिखना होता है ना, मतलब हाँ ऐसे बोलते हैं कि नहीं लिखना चाहिए, तो मतलब पता नहीं क्यों मैं वो ना लिख नहीं पाया वो तो मैंने लास्ट टाइम लिखा। और मैं अपने मेरे बच्चों का पेपर था, तो मैं हाँ और मेरा एक फ्रेंड बैठे हुए थे वहां पे। हाँ तो एक पर्सन आया, और वो ऐसे मतलब ना बहुत वो लग रहा था, तो वो बोल रहा है, वो मेरे आगे बोलने लगा कि मुझे मेरी मदद कर दो। तो मैं यहाँ पे काम देखने आया था, तो मैं एक्चुअली बेकरी का काम करता हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा, तो मेरी मदद कर दो, मुझे वापस जाना है घर। तो मैं फिर वो बैठा, और ना तो मैंने कहा मेरे पास ना केले पड़े थे, तो मैंने कहा ये लो भैया केले खा लो। तो वो ना उसने केले खाए और ना वो रोने लगा जोर जोर से। बोल रहा है कि मैंने रात से खाना नहीं खाया था, है आपने मेरी मदद करी, भगवान आपकी मदद करे, और ये वो। तो फिर इसके बाद ना मतलब फिर बोलता कि कुछ पैसे हैं तो आप पैसे दे दो। मैंने कहा चलो, मैंने कहा ये बहुत जरूरत में है अभी। सही। तो मैंने उसको 100 रुपीज दिए। तो वो ना इतनी दुआएं देने लगा मुझे। तो मैंने उसको बोला कि भैया देखो, शराब वगैरह पीने के लिए यूज मत करना, लेकिन तुम्हें जरूरत है अभी तो मैं दे रहा हूँ। तो बोला हाँ आप यकीन करो, वो एक्चुअली ना मुस्लिम था मैम। तो ओके। मतलब वो बोला कि मैं देखो, उसने खुद ही बताया कि मैं मुस्लिम हूँ और ये है। तो चाहे आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन आपने मेरी हेल्प करी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं मतलब वो एक्चुअली उसके 2 दिन ही पहले ही हमने वो उस पे नोट पे वो लिखा हुआ लिखा था। था। तो मतलब इट वाज रियली ऑसम एक्सपीरियंस। यस। मुझे यस। मुझे फील हुआ कि भगवान ने मतलब मुझे इस लायक बनाया। और मतलब वो बंदा मतलब हम बैठे थे दोनों, तो आके हमारी मदद करने लगा। और जो दूसरा फ्रेंड था ना, वो अपना वॉलेट घर भूल के आया भूल था। आया था। ओहो। तो So you ऐसा है got an मैम। opportunity. यस यस यस। Great, great, great. इसीलिए यदि if you want to have a good relationship with the money, no, my dear friends, you should give. Do this act of kindness every day. Look for it. आपके पास खूब opportunities आ जाएंगी. And the more you give, देखिए मैं कोई ऐसे कहावत है ना कि अपना घर जला के दिवाली कोई नहीं करता है। मैं यूं नहीं कह रही हूँ कि आप सभी कुछ दे दो, बट ये एटीट्यूड तो हो कि मैं किसी की कुछ मदद कर सकूं। अब एक 100 रुपीज से मजीद सर ने जो मदद करी, उससे उनका मन, जो उन्होंने थॉट्स डाले यूनिवर्स में, जो उन्होंने अट्रैक्ट किया, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। ब्यूटिफुल शेयरिंग, गुड माय डियर। हाँ जी सुषमा जी। If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check. And after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude works, and the gratitude and joy you feel will make bigger amounts unbelievable to you. यस। अभी आपके बॉस के ऑफिस में आप गए और आपने कोई छोटा सा फेवर मांगा, उन्होंने आपके साथ कर दिया। फिर आपने ऐसे दो चार इंसिडेंट्स हो गए कि छोटी छोटी चीजें उन्होंने आपके लिए करते चले गए। अब आप किसी बड़े चैलेंज में हो आज, तो क्या होगा? आप बॉस के पास जाने की हिम्मत रखोगे कि मैं जाके पूछ तो लेता हूँ, राइट? In the same way, when we fill up the small amounts, and those amounts when you receive, what happens? You will have the faith that yes, that this my feeling of gratitude and joy will attract more, and this gratitude will work. फिर आपको हिम्मत आएगी बड़ा अमाउंट डालने के लिए। उसके पीछे इंटेंशन तो चाहिए। ये इंटेंशन नहीं अच्छा देखती हूँ आता है कि नहीं आता, जिंदगी भर नहीं आएगा, करते रहेंगे अपन, राइट? ओके। हाँ सुनीता जी, कमिंग टू यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी सुषमा जी। Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for.
Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. Yes. So this is what the practice is. अभी जैसे मैंने आपको बताया, you will write today's date, you'll write your name, you'll write the amount of what is your intention, what do you want that money for. So you have that in your mind when you're writing it. After that, once you have filled up all the details, we will hold the check in our hand and think about that. This is again what is coming in the picture, the element of visualization. So we are visualizing ourselves using the money. For example, I want this money to buy something in my house. So I'm visualizing that thing has come into my house and I'm very happy. How are you happy? What are you sharing with everybody? Everything we have to visualize. This is what is very important. Yes, my dear. Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what what you want online, Online. then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as if you have really received it. Received it. This is so very important. Not only visualization, these are certain examples she is sharing. So not only the visualization, we really have to feel that thing happening and my feelings associated. How happy am I feeling? Am I feeling grateful also after receiving it? All these things are very important. Yes, my dear. मैम एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि मैम जैसे मतलब मैं ना ये बोलता था कि मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो ये बोलना सही है हाँ, क्यों नहीं, आप है ना ग्रेटिट्यूड मैम? कर रहे हैं ना। ग्रेटिट्यूड है ना? हाँ 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 हाँ, ठीक थैंक है यू ठीक सो मच। बहुत शुक्र है भगवान का, मेरे पास सभी है। हाँ जी कुछ है। तो वट एवर यू हैव, आप ये थोड़ी गिन रहे हो कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ 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 उसके तक क्वेश्चन ही नहीं आया। मेरे हाँ पास जी तो हाँ जो जी भी है उसके लिए बहुत शुक्राने। हाँ आप जी तो हाँ ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं सर। सुनीता जी, आप भी कुछ कह रहे थे, आप भी पूछ लीजिए माय डियर। Yeah, I wanted to ask that जैसे आप बोल रहे थे अभी नितिन जी की पैसे दिए, so I generally have a principle that I don't give money, but I buy. Supposedly I'm outside and I buy samosa or something or bread or packet of biscuit and then I give it. So is it a right approach or is it? Yes, even I love to do that. It's all bilkul perfect manner. See, it is everybody thinks differently. So there is nothing right, there is nothing wrong, right? Somebody would say, why do you give somebody anybody? That is their perception, their thought. Like, okay, if I have extra in my pocket and I can afford to give, I would give because somebody needs it more than me. So I'm ready to do that, which is that amount which is not hurting me also, right? So I would love to help somebody. Now, so if somebody is hungry, instead of money, if you feel that I'll buy something, eventually you have done the end product is same, right? Now, somebody would feel, okay, I don't want to give money because the person would do this and that. Even I used to be in this mindset at some point of time. कि वो ये कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा. So then we came to this thing like, कि वो जाने. See, I cannot change the whole world, right? Yeah. So I am giving, thinking my intention is very pure. It's like I am reading this book for all of you. So now my intention is very pure that as many people I can help or we are together doing it. So we are getting into that feeling. So as many people they get into it, it is good for us, all of us. But then there are so many who would not do. So then if I get into it, do you think so? All my things would flow out, right? Will I be able to do it? No. Then there would be a lot of grudge, lot of frustration there. He's not doing this, she's not doing that. Then instead of being in gratitude that I am able to bring this into my life, I am able to not only do for myself, I'm able to do for others as well. So would this feeling be there?
When when there are grudges, when there is frustration, when there is anger, he's not doing that, she's not doing that, I am telling him them to do it. What do you think? Will it be No, there? No. no. So now what I want is joy and happiness for myself, right? So I'm very grateful. There are two, as I say, we all have two choices. One is I'll be very frustrated, very grumpy. He's not doing this, she's not doing that. Another feeling is I'm so very grateful that the person is doing. They are there, 19 people, 20 people, they are there today, and we are discussing. Right. Yeah. और मैम जैसे मैंने ना उसको पहले मेरे पास जो बनाना था मैंने वही दिए थे, राइट। और मैं यूजली जैसे मैम ने बोला ना मैं भी वही करता हूँ। बट क्या हुआ कि मतलब वो उसकी जो सिचुएशन थी, तो वो बोलने लगा कि मुझे ना घर वापस जाना है। तो मुझे मतलब मुझे ट्रेन आपका के दिल लिए करा। हाँ, हाँ आपका नहीं दिल करा। उसने बोला कि हाँ मतलब देखिए बात देखिए मैंने मतलब जब मैंने उसको बनाना दिए ना पहले उसने खाए और फिर उसके बाद बोलने लगा कि मुझे ना मतलब मेरे पास मुझे जाने के लिए पैसे नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है हेल्प करता हूँ मैं। तो मैंने उसको दिए तो बोलता कि अब मैं इससे ना ट्रेन से जा सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं ये रियली मतलब इसके लिए एनफ है। जेन्युइन क्यों? है। क्योंकि हाँ, ट्रेन से जाना है उसको तो ट्रेन से का फेयर जो है वो उससे हो सकता है उसका आराम से। वेरी सेम गुड। हियर मैम, फ्यू मंथ्स बिफोर हुडा सिटी सेंटर, यहाँ मेट्रो स्टेशन है, वहां से किसी मतलब आदमी ने मुझे पैसे मांगे कि मुझे घर जाना है। मैं यहाँ काम के लिए आया था, मेरे फैक्ट्री में लगा हुआ था, लेकिन अब मेरे को निकाल दिया गया है, मेरे पास अब घर जाने के लिए भी पैसे नहीं है। उसने मेरी जो तनख्वाह थी दी नहीं उसने, तो अब मेरे पास पैसे नहीं है घर जाने के लिए। तो मैंने कहा तू सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? तो बोलता नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, आपको मैं फोन नंबर लगा के देता हूँ, आप मेरी वाइफ से बात कर लो, आप मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मैं पेटीएम वहीं से कर दूंगा, लेकिन अभी प्लीज मुझे 100 रुपीज दे दो। तो मैंने कहा मुझे बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ तेरी बात सुन के तेरे ऊपर विश्वास करके ये मैं 100 रुपीज तेरे को देती हूँ, तेरे को इनफ है या और 100 दूं? कहते नहीं मुझे इनफ है ये। तो गुड। मैंने मैम उसको 100 रुपीज दिए। उसके बाद मेरे साथ जो हमारी नेबर थी वो बोलती ये तो आए दिन स्टेशनों पे ये नाटक करते हैं रोने का फोन का, ये आपको नहीं देने चाहिए थे। मैंने कहा देखो अब वो रोने लग गया तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगेन सबका अपना हाँ, परसेप्शन है, सुषमा जी। मैंने बस सिर्फ यही बोला, उसका हाँ, कर्म उसके साथ, उसके मैंने साथ। अपना कर्म कर हाँ, दिया, बस आपको दैट्स इट। याद होगा, आपको याद होगा, सुनीता मैम ने एक बहुत दिन पहले एक ये शेयरिंग करी थी कि कोई आया था, मेड थी किसी ने, तो उससे पैसे मांगे थे, तो उनकी नेबर ने तो बहुत गुस्सा यस होके दिया था, इरिटेट होके दिया था, उन्होंने खुशी से दिया था। दोनों की फीलिंग्स अपन ने वही डिस्कस किया था, कितना फर्क यस है। यस। दिस इज व्हाट लाइफ इज। बस मुझे मैंने क्या वही चाहिए? कह के छोड़ दिया, मुझे मैंने क्या अपना चाहिए? कर्म कर दिया, अब आगे बस। उसका कर्म है। यस। चलिए और आगे मैम बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे मैम ने बोला ना कि सेम चीज मेरे से भी उसने बोला कि आप फोन दे दो, एक फोन मिला लो और आप पूछ लो। तो मैम कभी भी हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स हाँ भी हो रहे हैं। हाँ हाँ क्यों? तो हाँ। ये कभी कॉल नहीं करना आपने, उसको बोल बहुत मतलब देना अच्छी नहीं बात फोन। बोली सर मंजीत हाँ सर आपने। देखिए ये तो आजकल फ्रॉड और ट्रैप की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब भी हम किसी के साथ कुछ भी काम करेंगे, किसी की भी मदद करेंगे, जब भी मैंने एक्सपेक्टेशन के साथ करी कि ये भी मेरे साथ करेगा, तो वो फीलिंग ही अलग है। तो वी विल नॉट बी इन ग्रेटिट्यूड, हो ही नहीं सकता। जब भी मैंने एक्सपेक्टेशन के साथ काम किया है तो वो होगा ही नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने आपकी मदद करी तो आपने मेरे लिए ग्रेटिट्यूड किया। कल को मैंने आपकी किसी वजह से मदद नहीं करी तो आपने मुझे गाली नहीं दी, पर फीलिंग भी तो अच्छी नहीं रखी ना, कि मैं तो फिर एक बार मैंने करा, फिर दूसरी बार नहीं करा, फिर 3 4 बार बिल्कुल भी नहीं करा। तो व्हाट इज योर फीलिंग? आपकी फीलिंग इज तो इम्पोर्टेंट है, कि आपने अपनी फीलिंग कहाँ तक रखी है। यदि वो बच्चा कोई इंसान मेरे लिए कर रहा है तो मैं हैप्पी हूँ, ग्रेटफुल हूँ। और यदि वो उस इंसान ने नहीं किया तो मेरा तो थॉट ही बदल गया उसके लिए। डू यू थिंक सो द ग्रेटिट्यूड विल वर्क इन दिस वे? व्हाट डू यू थिंक? नहीं वर्क करता मैडम। करेगा ही नहीं, मैडम करेगा ही वही नहीं। बात हो गई ना, जैसे कि हम मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि भगवान का जब हम सुख में होते हैं तो हम शुक्राना करते हैं और दुख में नहीं करते। तो नहीं, दुख हमें में हमेशा भगवान का शुक्राना करते रहना चाहिए,
चाहे जिस तरह की भी सिचुएशन हो। यस, वी शुड तो बी इन वो चीज़ ग्रैटिट्यूड। है। उसने मेरे को उस वक्त मदद करी ना, अभी वो अब हो सकता है आज की तारीख में वो मदद नहीं कर सकता है, आज की तारीख में उसका मन में कुछ और है, तो जो भी है फाइन, आई एम हैप्पी विद दैट। देन यू सी द फ्लो। मैम आई वांट टू से समथिंग। हाँ जी माय डियर। मैम अभी सब लोग बात करते करते ना मुझे रिकॉल हुआ, लास्ट मतलब जनवरी या फरवरी इसी साल की बात होगी, मैंने ना मैं ऑफिस के स्टेयरकेस से नीचे उतर के मैं अपना नीचे का ताला लॉक कर रही थी। हाँ एंड नॉर्मली मैं उस समय मेरे पास कोई पर्स वर्स कुछ नहीं था। तो हम्म एक हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा उसकी गोदी में था, वो एकदम ठंड था उस समय, जनवरी फरवरी की बात थी। तो उस वो बंदा ना हर मतलब मेरे बगल से जितने पड़ोसी है ना उनके यहाँ जा रहा था कि ना हमें कोई सहायता कर दो, 20-20 रुपए दे दो, हमें ना लौटना है, हमारा पैसा खत्म हो गया। तो तब तक मैं ग्रेटिट्यूड तो आप लोग के साथ करती नहीं थी, पर मुझे रिकॉल हुआ। तो फिर वो मेरे पास आया, तो मैंने कहा भैया क्या बात हुई? तो बोले कि हम लोग ना लेबर हैं, हम लोग को पूरा दूसरे शहर से बुलाया गया था काम के लिए, पर हमारे मालिक ने हमें अब काम से निकाल दिया। फिर मैंने उसको पूछा तुम कौन से गाँव के लिए, किस गाँव में आए थे? तो उसने कोई नाम बताया, तो आई डिडंट नो। तो मैंने कहा क्या चाहिए? तो कह रही नहीं बल्कि 20-20 रुपया दे देंगी तो हम लोग के पास 100-150 रुपया होएगा, तो हम लोग अपने ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे, तो जनरल में भी पैसे लगते हैं। इसने मुझे ऐसे बोला। तो मैंने ना उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने मन में सोचा अगर मेरे पास 100-200 रुपये होते तो मैं इसको हेल्प कर देती। तो सच्ची मैंने बात है। जैसे ही वो फिर मैंने कहा भैया मेरे पास होता तो मैं जरूर से देती। तो वो दोनों लोग आगे चल पड़े, और जैसे ही मैंने वो चाबी का गुच्छा मेरे पॉकेट में पर्सन। घुसाया, मेरी वो जो कुर्ता का जो पॉकेट होता है, तो उसमें मुझे लगा कुछ पैसे हैं। मैंने निकाला मैम, 200 के नोट थे, और वो मैंने उसको फिर बुला के दिया। एंड अभी सबने बोला ना, तो मुझे एकदम इंस्टेंट रिकॉल किया कि मेरे अंदर वो इच्छा आई कि ना ये बच्चा गोदी में लिए और हस्बैंड वाइफ अपने घर पहुंच जाए। एंड वो एक मिरेकल ही था, क्योंकि अब जब ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं ना, तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने मन में वो थॉट लाया हाँ कि ना ये तो 20-20 मांग रहा है, मैं तो 100-200 दे सकती हूँ। एंड वो दिन मुझे अभी याद आया कि उस दिन पैसे नहीं थे, मैंने मना भी कर दिया, पर मेरे अंदर इच्छा आई थी, और मैंने फिर उसको बुला के वो 200 रुपये दिए कि ये इसके भाग का ही रहा होगा जो मेरे से निकला है। धोते समय वॉशिंग मशीन में रह गया होगा। हाँ, वंडरफुल तो वंडरफुल। ऐसे ही हुआ था मैम मेरे साथ। मैं ये वाले इंस्टेंसेस आप लोगों के साथ शेयर करने में इसलिए भी इंटरेस्ट फील कर रही हूँ कि इसमें क्या होता है कि अपन को उस फीलिंग की बात कर रहे हैं हम, कि उसको देने के बाद मुझे क्या फील हो रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, राइट माय डियर, कि मैंने उसको ग्रेटिट्यूड किया, मैं आई वाज Yeah, वेरी it's very ग्रेटफुल। satisfied. हाँ, एक बहुत बड़ा एक ग्रेटिट्यूड निकलता है कि मैंने किसी के लिए कुछ कर पाई, मेरे पास था इसलिए मैं कर पाया। थैंक यू सो मच मनी, थैंक यू सो मच माय यूनिवर्स, राइट। अब बहुत बार आप जब ग्रुप में बैठते हैं तो कुछ लोग बहुत बड़ा बड़ा बखान करते हैं, हम ये करते हैं, हम आश्रम में डाल के आते हैं, हम इनको देते हैं, हम हर महीने ऐसा करते हैं। तो जब मैं गा गा के किसी को बता रही हूँ अपनी सारी चीजें, वहां पर क्या मैं ग्रेटिट्यूड में हूं? No. नहीं हूं। यदि मैं गा गा के सबको बता रही हूँ कि मैं ये करती हूँ और मैं वो करता हूँ, तो इंटेंशन क्या है मेरा? इंटेंशन है कि आप सब लोग सोचो कि मैं कितना बड़े दिल वाला हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। वैलिडेशन चाहिए मुझे लोगों से कि मैं अच्छा हूँ, लोग बोले मुझे कि मैं अच्छा हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज फंडा ये है, कहने वाले यहां तक कहते हैं कि राइट हैंड ने करा तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए मैंने क्या किया। राइट डियर फ्रेंड्स। Yes. तो पर्पस यहाँ आप लोगों ने ब्यूटीफुल शेयरिंग करी, वंडरफुल। एटलीस्ट हम अब देखो बता पा रहे हैं कि मुझे कितनी खुशी हुई। आई वॉज इन टू दैट फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। ब्यूटीफुल शेयरिंग, थैंक यू माय मैम डियर। एक क्वेश्चन है मैम। हाँ जी। मैम जैसे मंजीत सर ने बोला कि जितना मेरे पास बहुत है भगवान का दिया हुआ, तो दैट फीलिंग इज करेक्ट। एंड टू स्टे विथ जो है मेरे पास, मैं उससे खुश हूँ। टू हैव दैट फीलिंग कि या फिर कंटेंट रहना, सेटिस्फाई रहना, या वी शुड आस्क मोर, मतलब व्हाट इज बेस्ट? सी इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरा कल तो नहीं, कल हरीश सर का टर्न, परसों परसों आई टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव टॉक्सिसिटी। अपन बात करेंगे इस पे, पॉजिटिविटी कैसे टॉक्सिक हो सकती है। मैं आई विल शेयर दिस
your quote, your example there. But right now, we all are very different. यदि मुझे नहीं चाहिए, I'm content with what I want, what I have. And I feel मेरे पास abundant है. And I'm grateful about that. तो believe me, वो मेरा खत्म नहीं हो जाएगा. Because my gratitude का feeling तो सर्वोपरि है. Now, if I'm asking, if I think मुझे ये चाहिए, then also there is nothing wrong in that. एक बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने हैं, बट उसके नया खिलौना कोई आया है और उसको चाहिए, तो क्या वो बच्चे को नहीं करना चाहिए? क्या बोलते हैं आप लोग? What do you think, dear friends? Your opinion. Right or wrong कुछ नहीं होता. Your opinion. I think he is justified, he or she is justified in asking, but then he should be We are not in a into position. this. No, we are not into this, what he should do or he should not do. My question to all of you is, when the child is asking, is it correct or is it incorrect? What would you say? It's okay. Let the child ask. Yeah, I Correct. think it is all right. Yeah. So, in the same way, if I have got plenty, but if I feel कि मुझे ये चाहिए, तो if I'm asking my creator, what is wrong in that? There's nothing wrong. But at the same time, I'm very grateful for what I have. मैम वो एक ग्रीड भी नहीं होनी चाहिए ना? ग्रीड भी नहीं है. ग्रीड तब होती है, ग्रीड तब होता है माय डियर, जब मैं सभी कुछ मेरे लिए चाहती हूँ, किसी और के लिए नहीं चाहती हूँ. और जब दूसरे को मिलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है. ये सारी चीजें हमें अपने अंदर देखनी है. क्या जब दूसरे के पास आता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है? जब दूसरा कुछ लेके आता है, क्या मैं उतनी ही खुश हूं जितना मेरे पास आता है उस वक्त खुश होती हूँ? ये सारी चीजें आपका रिलेशनशिप मनी के साथ डिसाइड करती हैं. क्योंकि हम सब लोग, ह्यूमन इज अ वेरी इंटेलिजेंट बीइंग. उसको अंदर बाहर वो बेवकूफ बनाना बहुत अच्छे से आता है, और वो अपने आप को इस फीलिंग में रख भी लेते हैं दूसरों को दिखा के. बट अंदर क्या चल रहा है आउटसाइड? सो फॉर एग्जाम्पल you have got something new and I'm saying, oh very good, और अंदर से I'm not very happy, मेरे तो आता ही नहीं, इनका ही रोज आ जाता है. What kind of feeling am I sharing with money? Envy. Do you think so? Will that thing come to me? Never. कहाँ है मेरे पास joy? और joy नहीं है तो यहाँ पर तो गुस्सा है. तो यानी मेरे पास गुस्सा कब आएगा? जब मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं तो उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड ही नहीं है. जो नहीं मिला है उसके लिए चिल्ला रही हूँ. तो ग्रेटिट्यूड कहाँ है? Right? So all these things would decide my relationship with money. चलिए खत्म करते हैं इसको जल्दी से. मैडम एक क्वेश्चन, सॉरी मैम. एक्चुअली देखिए, जैसे जो इस बात पे एक चीज पूछनी थी मुझे. जैसे मैम मैं ना मतलब मेरे पास कार है, लेकिन मैं जहाँ पे मेरा नेटिव है वहां पे है. तो मैं जहाँ पे रहता हूँ मेरे पास अभी कार नहीं है. और लेकिन जैसे मेरे जितनी भी सोसाइटी में लोग हैं मोस्टली उनके पास कार है या उनका अपना जो व्हीकल है वो है. तो मेरा जो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे लाइक स्कूल बच्चों का एकदम नियर बाई है. मैं ऑफिस में जाता हूँ तो मैं पूल करके चला जाता हूँ. तो वाइफ को मैंने बोला है कि तू ऑटो करके चला जाएगा. और बाकी जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम ओला या उबर यूज कर लेते हैं. तो लेकिन मुझे कभी कभी ये फीलिंग, देखो आजकल के टाइम में कहते हैं ना कि वो एक नेसेसिटी बन गई है. I got your point, sir. ये कल ही एक क्वेश्चन आया था, एक किसी और सीए से आया था. हाँ जी. तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अब मुझे गाड़ी अपने उस यूज के लिए चाहिए. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. बट अब वो उस चीज को, अभी तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं अगेन. या तो मैं उस चीज में, जब भी मैं किसी में भी जाती हूँ, पूल करके जाती हूँ, ओला उबर करती हूँ, अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती. पता नहीं कब आएगी मेरी गाड़ी यार, पता नहीं कब आएगी, कब तक लोगों से मांगता पड़ना पड़ेगा मुझे. Another feeling is I'm so grateful that somebody is taking me happily. I have got, मैं पैदल नहीं जा रही हूँ, मुझे किसी के साथ जा रही हूँ. और आज नहीं जा रही हूँ, रोज जा रही हूँ. मेरे बच्चे भी पैदल नहीं जाते. बहुत लोग हैं जो पैदल जाते हैं सर. मेरी वाइफ को भी, मेरी जेब में पैसे हैं तो मैं ऑटो कर लेती हूँ, ओला उबर कर लेती हूँ.
अब जब मैं इन सब चीजों के साथ ग्रेटिट्यूड के साथ करूंगी तो मेरे पास मेरी गाड़ी भी बहुत जल्दी होगी। फेथ एंड एबिलिटी के होगा, मतलब मेरा फेथ है, बिलीफ है। दूसरा, मैं ग्रेटिट्यूड में हूं कि मेरा ये सब हो रहा है। और तीसरा, मैं एक्शंस ले रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ कि मेरा ये चीज हो जाए। मतलब मैं कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ, घर में बैठी हूँ और मैं खाना भी नहीं बना रही हूँ, अब सोचती हूँ कि कोई मुझे खाना दे जाए। क्या बोलते हैं आप लोग? सही है। तो इसमें 3 चीजें हो गई। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जो मेरे साथ चीजें, इतने सारे लोग मेरी मदद कर रहे हैं। ओला उबर मिल जाती है, मेरी वाइफ को ऑटो मिल जाती है, मेरे पास पैसे हैं इन सब चीजों के लिए। दूसरा, राइट। आई एम वेरी ग्रेटफुल। और दूसरा, अब जब मैं ग्रेटफुल रहूंगी तो मेरे पास ये सारी चीजें, और मेरी आस्क है, मेरे पास ये आस्क भी है उस क्रिएटर से, मेरे यूनिवर्स से, कि मुझे ये, आई एम लुकिंग फॉर, आई वुड लाइक टू हैव अ कार ऑफ माई ओन। राइट? ओके ओके, मैम, थैंक यू सो यस, मच। यू आर वेलकम। चलिए सुषमा जी, खत्म करते हैं। After you have completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often on at least 2 more occasions during the day today. Take the magic check in your hand. Picture yourself actually using the money for what you wanted and feel as grateful and excited, excited Excited, yeah. as you can, Hmm. as though you are really doing it. If Hmm. you want, you can do it more times in the day. As with any other magical practice, you can't do it too often. मीन्स आप इसको जितनी बार भी करोगे तो वो ज्यादा नहीं है। यू कैन डू एज मेनी टाइम्स, दिस इज द लास्ट लाइन व्हाट इज सेइंग। नाउ आफ्टर यू हैव फिल्ड अप द चेक, आफ्टर यू हैव फिल्ड अप द चेक, नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द स्टेप्स, दूसरा स्टेप आपने क्या किया था? आपने विजुअलाइजेशन किया था। किस चीज Yes. के लिए आपको वो पैसा है, उसको विजुअलाइज करके आपने क्या किया? आप उसकी बहुत हैप्पी फील की। अब आप क्या कर रहे हो? उस एक बार में खत्म नहीं हो गया। अब आफ्टर डूइंग ऑल दिस, अब आपने वो चेक ऐसी जगह पे रखा है वेर यू कैन सी इट ऑफन, आते जाते आपको नजर पड़ रही है कि अच्छा, उसमें ये नहीं लिखा है कि किस चीज के लिए चाहिए, बट आपको पता है वो किस चीज के लिए चाहिए। एंड आज दिन भर में एटलीस्ट ऑन 2 ओकेजन्स मेरे को क्या करना है? आई हैव टू हैव द मैजिक चेक इन माई हैंड। क्या करना है? ये सारी कवायद आप क्यों कर रहे हो? विजुअलाइजेशन। आपने फॉर एग्जाम्पल अपनी ट्रिप टू यूरोप के लिए वो अमाउंट डाला है, तो अब आप हाथ में चेक लेके क्या कर रहे हो? आप यूरोप चले गए हो, वहां पर आप चले गए हो और आप बहुत खुशी खुशी अपने आप को देख रहे हो सब करते हुए। और सिर्फ देख नहीं रहे हो, आप मन से इतना खुश हो रहे हो, यू आर एक्साइटेड एंड ग्रेटफुल दैट यू वर एबल टू डू दिस। और जब ये दिन में जितनी बार करेंगे तो अपन कर क्या रहे हैं? वो थॉट बार बार डाल रहे हैं और अपने माइंड को पॉजिटिव कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। एंड दिस इज हाउ वी विल अट्रैक्ट इट। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात तो बहुत क्लियर होगी कि जो भी थॉट मेरे पास बार बार आएगा, जिस फीलिंग को मैं बार बार फील करूंगी, वो चीज होगी। तो पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव भी होगी। तो हमें ये केयरफुल रहना है कि मैं कौन सी फीलिंग में दिन भर में जा रही हूँ बार बार। राइट? दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ओके डियर। At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you have received the money and be grateful that now you can have or do what you want. यस, तो इसीलिए ये इंटेंशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये पैसा मुझे चाहिए क्यों। क्योंकि बार बार आप वो उस एंड रिजल्ट को विजुअलाइज कर रहे हो कि उस पैसे से मैं, उसका क्या यूज है मेरे पास अभी आज की तारीख में इस चेक का। सो देयरफॉर यू आर, जब मेरे पास वो एंड प्रोडक्ट है ना कि मुझे ये करना है, देन ओनली इट इज वेरी इजीली टू विजुअलाइज। राइट? अभी आपको विजुअलाइज करना है
कि आपको फॉर एग्जाम्पल मुझे बॉम्बे जाना है, तो अब किसी ने मुझे कहा विजुअलाइज करो, आप घर से पैकिंग करके गए हो, अब आप स्टेशन गए हो, स्टेशन में बैठे हो और अब ट्रेन आपको सुबह बॉम्बे लेके गए और अब आप बॉम्बे को इमेजिन करो। इजी। अब ये बॉम्बे नहीं होता, आपको अब मुझे लगता कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो अब मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं कैसे इमेजिन करूं, राइट? देयरफॉर दिस एंड प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ रखेंगे हम? जहां मुझे इजीली दिखता है। फ्यू एग्जाम्पल्स शी इज गिविंग, वी कैन ऑलवेज वॉट एवर गोज विथ मी, सबका अपना है, एंटिसिपेट जहां करते हो आप, जहां आप चाहते हो वो सही है। यस माय डियर। When you have received the money on your magic check, or if you received the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want and continue with the magic check practice as long as you want. यस, एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। तो इसीलिए छोटे अमाउंट से जब अपन उस चीज को आने लगता है, तो हमारी वही, बॉस ने पहली बार में एक छोटी सी बात मानी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, तो हमें उसी बॉस पर, जिससे मुझे पहले बहुत लगता था क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, मेरी ऐसी वाली फीलिंग्स थी या कोई भी फीलिंग ही नहीं थी, तो अब मेरी उस बॉस से क्या फीलिंग्स चेंज हो गई ना, मेरी फीलिंग। ऐसे ही मेरा मनी के साथ रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा व्हेन आई एम doing, putting smaller amounts, getting that amount, going for the higher amount and attracting. But one thing is very important, that I should know what do I need that money for. And then you see the speed at which visualization is very important. चेक बना के लिख दिया, ये एक, हम लोग अपने अपने घरों में देखें तो बहुत सारी चीजें स्क्रिबल करते रहते हैं. दिस इज अनदर थिंग व्हिच वी हैव स्क्रिबल्ड. दिस विल नॉट हैपन. Right, my dear ones? Okay. Magic practice number 17, the magic check. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write only you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Number 2, fill in your magic check with the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Number 3, hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. Take the Number 4, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions, take the check in your hands, picture yourself using the money for what you want, and feel as grateful as though you were really doing it. Point 5. At the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily when you have received the money on your check, or if you received the item you wanted to spend the money on, replace the check with a new amount for something else you want and repeat steps 2 or 4. Number 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Wonderful. Thank you. Thank you so much, Sushma ma'am. So, my dear friends, I'm sure it is very clear to all of you. Any doubt here? We have to get the printout of this check. Why the printout? Now, why not any particular check? Because that particular check doesn't have the Bank of Universe written on it. Therefore, this particular check. Now, we will write the amount for what we need this amount, and we will visualize that we have received that and be very happy, whatever feelings are coming into your mind. Now, after that, we will put it somewhere where we can easily see it. Let me give you one last example. If you see, there are 2 roads. On one road, when I'm walking, there's a huge temple.
and I can see the build of the temple, and from outside I can see the idol also. मुझे वो deity दिख रहे हैं अंदर. तो जाने से पहले मैंने उनको नमस्कार किया. Right? Secondly, दूसरा रोड है जहां पे मंदिर तो है, बहुत अंदर है, मुझे दिखा भी नहीं, तो मैंने तो वहां पर माथा भी नहीं टेका. तो इसीलिए आप इस चीज को क्यों सामने रखेंगे? इसलिए रखेंगे so that when you can see it again and again, how would it be? It would be so different. You will always be that in that feeling of receiving it. You will keep visualizing that you've got it and feel happy and excited about it. And that is the whole story about today's practice. I'm sure you all must have understood well. So all of you, please do it well. मैम लास्ट टाइम जो किए थे उसी को रिपीट करना है? नहीं मैम, यदि वो आपका खत्म हो गया हो, आपका वो चेक हो गया हो, तो आप दूसरा चेक बना सकते हैं. नहीं तो मैम वो अभी तो लगा ही है, तो अभी दूसरा दो और नया बना ले. अभी देखिए, बनाने को 50 बना लेंगे, बट हमारी फीलिंग्स उसके ऊपर जानी चाहिए मैम. आर फीलिंग्स टू गो विद इट. मैं आपको, जैसे मैं यूं नहीं कह रही हूँ, हो सकता है आपका कल ही आ जाए, कोई पता नहीं मनीषा. मैम मैं अपने हस्बैंड के लिए कर सकती हूँ. कर सकते हो, व्हाई नॉट? ओके, वाओ, ठीक, थैंक यू. Yeah. But my dear friends, as I'm again and again saying, just don't make it another practice where you have scribbled something on the check instead of paper. मैंने अभी check पर लिख दिया है और मैंने खत्म कर दिया है. मेरी feelings उसके साथ associate होना बहुत important है. मैडम जैसे दूसरे के लिए अगर लिखना है तो उसमें उनका नाम लिखना है ना? एक बात बताइए आप लोग. रंजीत सर. हाँ जी, हाँ जी. आपको आपकी वाइफ का वेट रिड्यूस करना है, करिए आप एक्सरसाइज रोज. ओके, ठीक है. मैंने मनीषा से भी यही कहा, बट देखिए, मैं आपसे ये कहूंगी कि दूसरे के लिए पहले आप, क्योंकि देखिए साहब, जो चीज मुझे मेरे लिए करनी है तो मैं उस शिद्दत से करूंगी तो चीज होगी ना. अभी एक्सरसाइज तो मैं कर रही हूँ और चाहती हूँ मेरे हस्बैंड का वेट रिड्यूस हो जाए. फीलिंग्स में फर्क होगा ना. यस 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 यस. तो अभी देखिए, अभी ग्रैटिट्यूड आप कर रहे हैं, तो जो फीलिंग्स आपके पास आएंगी, वो जो घर के दूसरे मेंबर्स के पास जा रही है क्या? वो आपके बिहेवियर से, आपके एक्सपीरियंसेस से उनको अच्छा लगेगा, तो वो कुछ कुछ चीजें अपने आप करें, वो दूसरी बात. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. मैडम वो मैरिज में 7 फेरे लेते वक्त वो बोलते हैं ना कि जब आप धन लेके आओगे वो आधा उनको. ये सर ये भी बोलते हैं कि जो हम कर्म करते हैं ना, आधे आधे बढ़ जाते हैं, ये भी बोलते हैं. और मैडम जो वो कर्म करेंगी वो सारे वो भी आधे आधे हो जाएंगे. हमारे सारे कर्म अच्छे होंगे तो वो उनको लगेंगे बुरे कर्म नहीं, उनके जो वो उसमें कर्म में गिने जाएंगे. सर अगर इस टॉपिक पे बात करेंगे ना, बहुत जाएगा. अभी कहते हैं कि मंदिर जाते हैं, अगर हम जो शनिदेव के या जो भी नवग्रह का होता है वो करते हैं, अगर वहीं से ही हम लोग पैर धो के नहीं गए तो उसका फल जिठानी के पास चला जाता है. ऐसे बहुत सारे लॉजिक है सर. हाँ जी, हाँ जी. नहीं, वो बिल्कुल सही बोला आपने. वो मैं एक शेयर देखिए, करूंगा. मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक चीज बताई थी कि कोई भी चीज यदि आपकी फेवर की होगी, आपके लिए अच्छी होगी, तो आप बहुत लाइट फील करेंगे. लाइट फील होने का मतलब क्या? कि आज मैं सपोज 80 किलो की हूं तो मैं 60 किलो की हो जाऊंगी क्या? आपकी जो फीलिंग है ना, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा. और जब आपको अच्छा लगना है, यानी यू शुड डू इट. ये हमारी बॉडी इंडिकेट करती है हम सबको. ऐसे ही जब कोई चीज अपना बर्बन बहुत भारी मन से करते हैं कोई की. थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी. तो कोई चीज जब हम भारी मन से करते हैं तो कैसा होता है? भारी भारी लग रहा होता है. वो बॉडी का इंडिकेशन है, वी शुड नॉट डू दैट. दिस इज हाउ द यूनिवर्स इज द इंडिकेटिंग, दिस इज हाउ द बॉडी इज इंडिकेटिंग. एंड बहुत सॉफ्ट होता है वो, एंड देन वी समटाइम्स इग्नोर इट. दैट्स इट. चलो, great session. I really loved it. Enjoyed with all of you. Great sharing.
थैंक यू। मैंने भी बहुत एंजॉय किया रीड करने में। कल भी रीड किया था, तब भी बहुत एंजॉय किया, आज भी बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच गिविंग मी द चांस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। You're थैंक यू welcome. मैम, थैंक यू सो Thank मच। you, thank you, thank you, madam. Thank you so much all of you. तो कल I expect कि कोई और आगे आके थैंक पढ़ेगा। यू मैम। You're welcome, my dear. तो आप खुद से जब पढ़ते हैं ना, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो बहुत अलग होती है। आप पढ़ते हैं, एक आप सुनते हैं और एक आप पढ़ते हैं। मैं आपको, जैसे हम लोग आपको हमेशा कहते हैं, देखिए साहब, मैं आपको जब इलैबोरेट कर रही हूँ तो रीडिंग भी तो मैं कर सकती हूँ ना, राइट? अपन एक दूसरे को क्यों बोलते हैं कि रीड करिए? क्योंकि जिस एक्साइटमेंट के साथ मैं जा रही हूँ, आई वॉन्ट यू टू फील दैट एक्साइटमेंट, एंड दैट इज हाउ इट डिफर्स। सो इसलिए बी रेडी टू रीड टुमारो। जिसने आज तक नहीं पढ़ा है, प्लीज पढ़िए। एंड वी ऑल विल नॉट बी जजमेंटल कि कोई कैसा पढ़ रहा है। सब लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सबका अपना स्टाइल है, इट्स ओके, वी ऑल आर डिफरेंट। मैम, और पढ़ने से कंसंट्रेशन भी ज्यादा होता है। हाँ, आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाता है, नहीं जाता। राइट? यस। ग्रेट। चलो, thank you so much all of you for attending, for being there, keeping that energy in the group. Thank you so much. Thank you, थैंक यू ma'am. मैम, Thank थैंक you, यू thank सो you. मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। मजा आ गया। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू आज मेरा सर। पोता आया था, इसलिए मैं जरा म्यूट रखा था। Thank you. कोई बात। ओके, अरे ये कौन है? Thank you, sir. Good. ओहो। ये नहा कर आए हैं, आपकी क्लास के साथ ये नहा लेते हैं। हाय। चलो, bless you छोटू। Bless, yes, yes. God bless you. या चलो। And your son also. ते 4 दाडा 4